آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کو عنقریب ہی نکسلواد اور ماؤواد تشدد سے پاک کرانے کا دہرایا عزم۔ جی ایس ٹی اصلاحات کی بدولت اقتصادی منظرنامے کو تقویت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی خریداری میں ہوا اضافہ، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات اہنسا اور انسان دوستی پر مبنی تعلیمات ہر دور کے لیے معتبر ہو رہی ہیں ثابت، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے طبی نگہداشت کے معیاری ڈھانچے میں پیشنٹ سیفٹی کی اہمیت کو کیا اجاگر۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کو عنقریب ہی نکسلواد اور ماؤواد تشدد سے پاک کیا جائے گا۔ نئی دلی میں ورلڈ سمٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 11 برسوں کے دوران ماؤوادیوں کی دہشت گردی سے نمٹنے میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں نکسلیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 75 گھنٹوں میں ہی 303 نکسلیوں نے تشدد کے راستے کو خیر باد کر دیا ہے۔ 11 برس پہلے تک دیش کے 125 ضلع 125 سے زیادہ ماؤوادی آتنک سے پربھاوت تھے، اور ساتھیوں آج یہ سنکھیا صرف 11 ضلعوں تک سمٹ گئی۔ آپ جانتے ہوں گے کتنا کچھ کرنا پڑا ہوگا، اور اس میں بھی 11 میں بھی اب صرف 3 ضلع ہی ایسے بچے ہیں جو سب سے ادھک ماؤوادی آتنک کی چپیٹ میں ہیں۔ میں آپ کو پچھلے 75 گھنٹوں کا آنکڑا دیتا ہوں۔ ان 75 گھنٹوں میں 303 نکسلیوں نے سرنڈر کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے میں معیار کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور بہت سارے ممالک اب بھارت کے ساتھ تکنیکی ساجھیداری کے لیے تیار ہیں۔ وہ برہموس ایروسپیس یونٹ اتر پردیش میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی موجودگی میں برہموس میزائلوں کی پہلی کھیپ کو جھنڈی دکھانے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہی آتم نربھر بھارت کی میں مانتا ہوں کہ اصلی پہچان ہے۔ جس سوچ کے ساتھ ہم نے 2014 میں اپنی یاترا پرارمبھ کی، اس ویژن تک پہنچنے میں ڈیفنس سیکٹر کی بھومکا نشچت روپ سے بہت ہی نرنایک ہو، اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہماری ڈیفنس انڈسٹری اس بھومکا کو اسی اتساہ کے ساتھ نبھائیں۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے گرو ہو رہا ہے، کئی دیش بھارت کے ساتھ تکنیکی سہیوگ میں روچی رکھتے ہیں، اور برہموس ٹیم نے گت 1 مہینے کے بھیتر 2 دیشوں کے ساتھ لگ بھگ 4000 کروڑ روپے کے انوبندھوں پر ہستاکشر کیے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی 2.0 اصلاحات سے ملک کے اقتصادی منظرنامے کو دوام حاصل ہوا ہے اور تہواروں کے موسم کے دوران الیکٹرانکس، آٹو موبائلز اور دیگر اشیاء جیسے کلیدی سیکٹروں میں ریکارڈ سیلز درج کی گئی ہیں۔ وہ آج نئی دلی میں جی ایس ٹی بچت اتسو سے متعلق اطلاعات و نشریات کی مرکزی وزیر اشونی ویشنو اور صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کی موجودگی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ The prices are reduced, meaning the tax benefit is reaching the end consumer. 54 items. I'm not going to read each one of them out. And even as we say 54 items, you know, from 12 to 5, the rate reduction has happened. And from 28 to 18, rate reduction has happened on largely most of the goods. But in some cases, 1 or 2 went this way or that way. But 54 such daily use items we've been closely monitoring. اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں۔ نیچرل وے میں کنزمپشن ہر سال بڑھتا ہے ایز انکم گروز، ایز کنٹری گروز۔ بیکاز آف دی جی ایس ٹی ریفارمز کنزمپشن ول بی سگنیفیکنٹلی انکریزنگ اینڈ کوائٹ لائکلی اٹس ویری لائکلی دیٹ دی کنزمپشن ول انکریز مور دین 10% دس ایئر، وچ مینز قریب 20 لاکھ کروڑ روپے کا ایکسٹرا کنزمپشن ہونے کی پوری سمبھاونا ہے۔ صنعت و حرفت کے وزیر پیوش گوئل نے جی ایس ٹی بچت اتسو کے حوالے سے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ اس ورش جب 22 سپٹمبر کو نئے روپ میں نیکسٹ جن جی ایس ٹی لاگو ہوا، ایک الگ ہی اتساہ، الگ ماحول مارکیٹ میں، ادیوگ اور ویاپار جگت میں، سامانیہ لوگوں کے بیچ، گھروں میں، سب جگہ ایک نیا اتساہ، ایک نئے تیج کا واتاورن سب نے محسوس کیا۔
और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट निवेश में, व्यापार में, उद्योग में जो भारत की अर्थव्यवस्था को उछाल मिला है, विकसित भारत 2047 तक बनाने के संकल्प के साथ आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम हो रही हैं। जीएसटी से मुतल्लिक ये पैगाम। जीएसटी में कमी ने खोला जम्मू कश्मीर की तरक्की का एक नया बाब। अब अखरोट और बादाम पर लगेगा महज 5% जीएसटी। मांग में इजाफा, बरामदात में बेहतरी, किसानों की आमदन में बढ़ोतरी। जीएसटी इस्लाहात, मजबूत किसान, खुशहाल जम्मू कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कलमिकिया एलिस्टा रूस के सेंट्रल टेम्पल में भारत से पहुंचाए गए महात्मा बुद्ध के होली रिलिक्स पर हाजिरी दी। वाज़ेह है कि इन होली रिलिक्स को वापस भारत लाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में गुज़श्ता रोज एक वफद रूस पहुंचा। एक पैगाम में मनोज सिन्हा ने कहा कि महात्मा बुद्ध की तालीमात अहिंसा और इंसान दोस्ती पर मबनी हैं और ये तालीमात वक्त के हर दौर में मोतबर साबित हुई हैं। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिपब्लिक ऑफ कलमिकिया के सरबराह बाटू सरगेविच खासिकोव के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलची ने कहा कि ये मुलाकात काफी फायदा बख्श रही और इस दौरान भारत और रूस के दरमियान सकाफती और रूहानी रिश्तों को फरोग देने से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस लाए गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तिबी निगाहदाश्त के मयारी ढांचे में पेशेंट सेफ्टी की अहमियत को उजागर करते हुए अस्पताल निजामत में बेहतरीन तौर तरीके और इख्तराइयत को बुरोए कार लाने पर जोर दिया है। SKICC श्रीनगर में पेशेंट सेफ्टी से मुतालिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में सेफ्टी मयारात को बढ़ावा देने, नीज तिबी निगाहदाश्त के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए मौसर इकदाम किए जाने चाहिए। हम मरीज के उस बीमारी का इलाज किस तरह करेंगे, क्या डायग्नोसिस होगी, क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, पेशेंट के साथ किस तरह का सलूक होगा, बेड साइड मैनर से लेके दवाइयों को एडमिनिस्टर करने का तरीका, वो सारा पेशेंट केयर के अंदर जो है लिया जाता है। पेशेंट सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि हमारे तरफ से इलाज फरहम करने में कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि हम मरीज के जान को और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। इस तकरीब पर वजीर सेहत सकीना इतू, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, सेहत और तिबी तालीम महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह, सिकिम्स के बानी डायरेक्टर डॉक्टर AK नागपाल, सिकिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पिछले बरस चुनाव के दौरान लोगों के साथ किए गए तमाम वादों को मरहलावार तरीके पर पूरा किया जाएगा। अपनी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सियासी सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नीज लोगों को बिजली, पानी, तिबी निगाहदाश्त, सड़क राब्तों, तालीम, ग़िज़ाई अजनास की दस्तियाबी और दीगर शोबों में आला मयार की सहूलियात दस्तियाब रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा की बहाली के बारे में उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, कहा कि ये 3 कदम है। 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने जम्मू कश्मीर के तिबी निगाहदाश्त के शोबे को मुस्तहकम करने में डेंटल पेशावरों की अहमियत को उजागर किया है। SKICC श्रीनगर में 16वीं J&K डेंटल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि डेंटल डॉक्टरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के इकदाम किए जा रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीरोफर खान और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर परवीन A लोन भी इस मौके पर मौजूद थीं। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज बारामुल्ला में एक किसान मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने वहां लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों से किसानों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलती है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज लाल चौक में स्कॉश कश्मीर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के इश्तराक से मुनक्कद किए गए तीसरे गुल दाऊद शो का इफ्तिताह किया। उन्होंने सयाहों, मकामी लोगों और तलबा पर जोर दिया कि वो
20 नवंबर तक जारी रहने वाले इस शो की सैर करें। इस मौके पर स्क्वास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद ने कहा कि पूरी लाल चौक को फूलों के एक बागीचे में तब्दील किया गया है। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने आने वाले मौसम सरमा के दौरान इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इकदामात के बारे में कहा। विंटर्स हर साल रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार तैयारियां बेहतरीन से बेहतरीन होती जाती हैं ताकि यहाँ के लोगल्स किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट विजिट्स भी हो रही हैं और डीसीज की तरफ से भी जो है पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, चाहे वो कंट्रोल रूम्स की बात करें, स्नो क्लियरेंस की बात करें, पार्क की बात करें, सभी तरीके से जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और विंटर टूरिज्म को भी हम किक स्टार्ट करने की आज कोशिश कर रहे हैं कि विंटर टूरिस्ट को भी हम इन्वाइट करें कि जितने भी हमारे प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पर पूरे अच्छे इंतजामात किए गए हैं, तो सभी टूरिस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में जम्मू में मुकीम एक कश्मीरी खातून प्रिया पंडिता ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा देश नौजवानों का देश है। नौजवानों की आबादी लगभग 37 करोड़ है। इन्हीं नौजवानों के हाथ में हमारे शानदार कल की बागडोर है। जरूरी है कि हर नौजवान जिम्मेदार शहरी हो, देशभक्त हो। उसी के हाथ में देश की तरक्की की कुंजी रहती है और अगर यही नौजवान नशा करता हो तो वह बोझ माना जाता है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। नशा बिदअत है, नशा बीमारी है। नौजवानों को नशे से दूर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अक़लियती तबकों की फलाह बहबूद और मयार जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए तारीखी और इनकलाबी काम किया है और हमेशा मसावात की बुनियाद पर तमाम तबकों के साथ यकसां सलूक रवा रखा। इन बातों का इजहार उन्होंने आज सिख वेलफेयर मोहल्ला कमेटी छठी पातशाही रहनवारी के अरकान से तबादला ख्याल करते हुए किया। दरियासना पार्टी के नायब सूबाई सदर और MLA हजरत बल सलमान अली सागर ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल के दौरान तमाम खित्तों में तामीर और तरक्की का जाल बिछा दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज दनहामा हारवन में मलोरी पुल का इफ्तिताह करते हुए किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल कराने के लिए हमारी रियासत हमारा हक के तहत जिलों में भूख हड़ताल का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज नगरोटा जम्मू में एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नगरोटा असेंबली हल्के की बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर पार्टी के सदर सत शर्मा, असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करने, रोजगार दिलाने और मुफ्त गैस सिलेंडर देने के खोखले वादे करके बकौल उनके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स से मुतल्लिक 3 रोजा बूट कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप के दौरान तलबा को AI और रोबोटिक्स से मुतल्लिक जदीद जानकारी से रूशनास कराया गया। कैंप के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सईद अफशाना ने कहा है कि बूट कैंप से तलबा में तख्लीकी और इख्तराई अक़दार परवान चढ़ते हैं। फौज की टाइगर डिवीजन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS सहाय की निगरानी में जम्मू में मिलिट्री सिविल फ्यूजन कैप्सूल मुनक्किद किया गया। इस दौरान फौज, सिविल इंतजामिया के अफसरों और मारूफ तालीम दानों ने मुल्क के दिफाई निज़ाम को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने साबिक वजीर और डोगरा सदर सभा जम्मू के सदर ठाकुर गुलचैन
सिंह चाड़क के फौत होने पर दुख का इजहार किया है। साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी जहानी के फौत होने पर रंजो अलम का इजहार किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज श्रीनगर में सीआरपीएफ की 82वीं बटालियन के अहलकारों के लिए सीपीआर से मुतल्लिक एक जामे बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा प्रोग्राम जिला नामा आज रात 8:30 बजे नश्र होगा। आज के प्रोग्राम में जिला अनंतनाग में फ्लैगशिप स्कीम HADP की अमल आवरी से मुतल्लिक बात होगी। अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज उनके आस्थान आलिया पर उनके रौज़े शरीफ की पोशाकबंदी की गई, जिसमें काफी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और उस मुबारक चरार शरीफ में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आज मुल्क भर में धनतेरस का त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई दीगर अहम शख्सियात ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:39 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:52 पर होगा। खास खबरों पर फिर एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को अनकरीब ही नक्सलवाद और माओवाद तशद्दुद से पाक कराने का दोहराया अज़म। GST इस्लाहात की बदौलत इक्तिसादी मंजरनामे को तक़वियत हासिल होने के साथ साथ अशिया की खरीदारी में हुआ इजाफा, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन। महात्मा बुद्ध की तालीमात अहिंसा और इंसान दोस्ती पर मबनी तालीमात हर दौर के लिए मोतबर हो रही हैं साबित, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तिबी निगाहदाश्त के मयारी ढांचे में पेशेंट सेफ्टी की अहमियत को किया उजागर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।